A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed a lots of the important practical problem related to the second last chapter of your syllabus, that is an incomplete record. You can see that we discussed lots of practical problem related to this chapter, and you can see that how we will calculate the profit under the incomplete record with the help of the statement of affair. First of all, what is an incomplete record? Incomplete record is a record which are based on the single entry system as well as the record which are prepared and does not follow the rules and regulation of the accounting principle and concept. In other words, we can say that incomplete record is an unsystematic bookkeeping of accounting, and in this type of record we prepared only the personal account and the real account. So without creating delay, let's we discuss the today's topic, that is a practical problem of incomplete record. Okay. So first of all, we revise all the important steps related to the incomplete record, the calculation of the profit. The first step in which we calculate the profit, firstly we prepare the opening capital with the help of the opening statement of affair, and thereafter we prepare the closing statement of affair and calculate the closing capital. And after calculating the opening capital and the closing capital with the help of the opening statement of affair and the closing statement of affair, we prepare the statement of profit. With the help of the statement of profit, we calculate the profit after adjustment, and thereafter we calculate and prepare the final statement of affair. So in the incomplete record, the calculation of profit will be done in the following steps. The first step, you have to calculate the opening capital with the help of the opening statement of affair. Opening statement of affair. Thereafter, we prepared closing statement of affair and calculate closing capital. And the third step is prepare statement of profit and calculate the profit after adjustment. And at last, we prepared final statement of affair. So you can see that under the incomplete record, for the calculation of the profit, we follow the 4 steps. The first one, opening statement of affair. The second one, closing statement of affair. The third one, statement of affair. And fourth one, final statement of affair. And all the things are statements. सब की सब चीजें statement. And with the help of the opening statement of affair, we calculate the opening capital. With the help of the closing statement of affair, we calculate the closing capital. Okay. And with the help of the statement of profit, we calculate the profit after adjustment. And last, with the help of the final statement of affair, we prepare the balance sheet and the position of the assets and liability of the business organization after all the adjustment. So these are the steps. सभी चीजें आप अपने माइंड में एकदम ध्यान से रख लो. This is in step number 1, this is in step number 2, this will be the step number 3, and this will be the step number 5. So one by one, we discussed all the important concepts and questions related to this chapter. Let's we discuss about it. Okay. So the question is, Shyamdas Gupta keep his books on incomplete record. यानी श्यामदास गुप्ता अपनी बुक जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं. फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और ये सारी इंफॉर्मेशन, एंड द इंफॉर्मेशन इज 1 अप्रैल 2019
machinery 2,80,000, cash at bank 81,600, stock 1,31,600, furniture 1,50,000, building 3,20,000, creditor 74,000, debtors 49,200, 10% investment is a 4 lakh. If we are talking about the closing balance, that is on 31st March 2020, that is in machinery 3,70,000, cash at bank 4,63,000, stock 3,41,200, furniture 1,80,000, building 3,60,000, creditor 33,600, debtors 1,72,400, and 10% investment is a 4 lakh. So you can see that two information are given. By the help of these information, firstly we prepared the opening statement of affair and thereafter we prepared the closing statement of affair. So हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन का जब हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, सो फॉर्मेट is opening statement of affair and the date at which we prepared the statement of affair, that is on 1st April 2019, and this is a balance sheet. The first information is a machinery 2,80,000, second cash at bank 81,600, 81,600, stock 1,31,600, furniture 1,50,000, and building 3,20,000, 3,20,000, and creditor 74,000. Next is a debtor 49,200, and last one is a 10% investment is 4 lakh. Okay, and the value is 4 lakh. So this is a value. हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जो डिफरेंस आएगा इट विल बी राइट डाउन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड इट विल बी नोन एज एन कैपिटल एट बिगनिंग. सो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे. कैसे बैलेंस निकलेगा, 2,80,000, 3,20,000, ये हो गया आपका 3 to 5 and 6 lakh, 6 and 4 हो गया 10 lakh. तो क्लियरली आपको 10 लाख तो क्लियर हो गया. कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है, इसलिए मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं. फिर 1,50,000, ये भी क्लियर हो गया आपका. अब मैं आता हूं 81,600, 1,31,600 एंड 49,200. सबको एक साथ ऐड कर दो. 1 according to me, that will is a 6, 6, 12, 14, 1, 9, 10, 11, 12, 1, 8, 5, 13, 16, 16 and 4, 20, 21, 2, 1, 2, 3, 4 and 1, 14,12,400. And in the liability side इसको भी क्या शो होना चाहिए, 14,12,400. अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें से क्रेडिटर्स की वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे. क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 74,000. आई होप कि मेरा कैलकुलेशन सही हो. 004 and 8 and this will be 0 3 3, so 8 4 1 1,33,000, sorry 13 lakh
38,400. So the capital, opening capital, according to this question is 13,81,400. Okay, 13,38,400. Yes, absolutely correct answer. और उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे दैट इज एन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन सेम रहेगी, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दिया जाएगा. ठीक है, सो कैसे प्रिपेयर करेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? सो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस डेट को हम प्रिपेयर करेंगे? इसके लिए मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं स्पेस ले लेता हूं यहां से. ठीक है, सो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे. So write down closing statement of affair और डेट क्या है आपका? 31st मार्च 2020. ओके, सो वैल्यूज कौन कौन सी है? पहला है मशीनरी 3,70,000. The second information is cash at bank 4,63,000. Cash at bank 4,63,000. Next, stock 3,41,200. Next information is furniture 1,80,000. Next will be a building 3,60,000. Next will be a debtor 1,72,400. Next will be a creditor 33,600. Next, 10% investment is 4 lakh. अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसी तरह से जैसे हम लोगों ने इसको ऐड किया था वैसे हम एसेट साइड को भी ऐड करेंगे. और एसेट साइड को ऐड करने पे वी फाइंड आउट द टोटल ऑफ द एसेट साइड इज 22,86,600. लायबिलिटी में भी कितना आना चाहिए? 22,86,600 शो करना चाहिए. सो जब हम लायबिलिटी साइड को डिडक्ट करेंगे, इट मींस क्रेडिटर को डिडक्ट करेंगे 22,86,600 में से 33,600. So we find out 22,53,000. So this is an closing capital as per the capital fund. So capital balancing figure. So capital at beginning is 13,38,400 and capital at end 22,53,000. So ये बन गया आपका. अब क्या करेंगे सर? अब आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. तो फॉर्मेट क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट? मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जब आप बनाओगे तो ये कब बनाओगे? फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. ठीक, और जब बनाओगे तो दिस इज एन प्रॉफिट फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ओके, इसमें आप क्या करोगे? पहले प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कैलकुलेट करो. एंड प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? द फॉर्मूला इज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल कैपिटल. सो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन को हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं. एंड द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. ड्यूरिंग द ईयर he sold his personal investment of rupees 10 lakh and 4/5 the part of it invested into his business. उसने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का
बेच दिया और उसका फोर्थ फिफ्थ पार्ट यानी जो पैसा मिला उसका फोर्थ फिफ्थ पार्ट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। वेरी गुड। ही विदड्रॉ 60,000 इन ईच हाफ ईयर, वो हर 6 महीने पे 60,000 रुपए विदड्रॉ करता है। कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंड द एडजस्टमेंट्स आर, तो ये पहले क्या दिया था, एडिशनल कैपिटल और विदड्रॉइंग, तो ये इतना दे दिया तो पहले हम लोग उतना वर्क कर लेते हैं। सो कैपिटल एट एंड 22,53,000, उसमें से हम माइनस करेंगे कैपिटल एट बिगिनिंग प्लस करेंगे ड्रॉइंग और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। और एडिशनल कैपिटल कितना है, कह रहा है 10 लाख का फोर्थ फिफ्थ उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। सो 10 लाख का फोर्थ फिफ्थ, इट मींस 8 लाख, 8 लाख डिडक्ट करेंगे। एंड ड्रॉइंग कितना कह रहा है, 60,000 इन ईच हाफ ईयर। सो 60,000 इन ईच हाफ ईयर में मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि साल में 2 हाफ ईयर होते। सो 1,20,000। और कैपिटल एट बिगनिंग कितना आया था हमारा आंसर, क्योंकि मैंने तो रफ कर दिया है, आंसर आया था 38,400। सो ये आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व करने पे वी फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 2,34,800, 2,34,600। कैसे आया, 22,53,000 में से 1,20,000 ऐड कर दो और 13,38,400 एंड 8 लाख को दोनों को डिडक्ट कर दो। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब क्या करेंगे हम लोग, सारे एडजस्टमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर नेचर इसमें ऐड और लेस करेंगे। सारे एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट है प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। यानी डेप्रीशिएशन लगाना है किस पे, बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे। तो डेप्रीशिएशन को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग कितने की है, 3,60,000, उस पे डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करना है, बिल्डिंग पे 10%, सो 36,000। एंड फर्नीचर पे कितना डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, इट इज इन 20%, सो फर्नीचर इज 1,80,000 का 20% 36,000 डेप्रीशिएशन चार्ज हो गया। नेक्स्ट इज क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर एट 5%, आपको डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। सो माइनस, प्रोविजन भी आपकी प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। बैड डेट्स कितना प्रोविजन बनाना है, डेटर 1,72,400 का कितना परसेंट आपको क्रिएट करना है, दैट इज इन 5%, और कोई भी बैड डेट्स केवल नहीं है। सो ये आएगा आपका 0 से 0 0। $8620, I hope my calculation is good, 8620, yes। So उसको भी हम लोग माइनस करेंगे। The next adjustment is rent paid in advance 11,600, आपको रेंट एडवांस में देना है, आपने रेंट एडवांस में दिया है 11,600 का। सो एडवांस रेंट इज योर एसेट्स, और ये आपकी प्रॉफिट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई इट विल बी द एडेड। नेक्स्ट विल बी accrued इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ। अभी आपने जो इन्वेस्टमेंट रखा है 4 लाख का 10% के हिसाब से, उस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट अभी एक्रूड है। एक्रूड का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये भी आपकी एसेट्स होती है। सो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके एसेट्स होती है। कितना, 6 मंथ का। सो 4 लाख का आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 10%, कितने मंथ का आपका एक्रूड है, 6 मंथ का। सो 40,000 का हाफ इज 20,000। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, इट इज एन आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी
एंड द सैलरी इज 4,400। इसको क्या करेंगे माइनस। तो आपने देखा हमने एडजस्टमेंट को उसके नेचर के अकॉर्डिंग ऐड और लेस कर दिया, कुछ चीजें प्लस की और कुछ चीजें हमने क्या कर दी माइनस कर दी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे डेप्थ। इस 2,34,600 में 36, 36, 86, 20, 4,400 इतनी वैल्यू डिडक्ट कर देंगे। 11,600 एंड 20,000 की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे एंड वी फाइंड आउट द प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट इज 1,81,180 and it is called profit after adjustment. It is called profit after adjustment. ये बन गया आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें हम लोगों ने पहले प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कैलकुलेट किया, फिर हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। नाउ ये आपके सामने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर है और ये आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है। विद द हेल्प ऑफ द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे दोनों इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर दें और जैसे ही हम इन सारी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करेंगे बनकर आ जाएगा हमारा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कैसे बनेगा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर को एज इट इज रहने दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। कैपिटल को यहां से रिमूव कर दो, इसलिए मैंने आज का डे आपको क्या किया है, यहां मैं अब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर को एडिट कर मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने जा रहा हूं, दैट इज ऑन 31st March 2020 को। सो द क्रेडिटर इज 36,600, उसमें कोई चेंज नहीं करना है और जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है उसको उसके नेचर के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा, क्रेडिटर को एज इट इज रहने दो क्योंकि उस पर कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है और उसके बाद क्या लिखोगे यहां पर कैपिटल, वो भी कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी आपकी 13,38,400 और एज इट इज उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करो, ड्रॉइंग माइनस करो, एडिशनल प्लस करो, जैसे हम लोग करते थे। ओके, जैसा नेचर जिस तरह से हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। ओके, सो 13,38,400 नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट कितना है 181,180, 1,81,180। ड्रॉइंग इज 1,20,000 and additional capital is 8 lakh। ऐड कर दिया, ठीक। लायबिलिटी साइड आपका क्लियर हो गया। और लायबिलिटी साइड में आप क्या लिखते हो, एक लिखते हो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज योर लायबिलिटी। कितना सैलरी ड्यू था बट नॉट पेड 4,400। ओके, ये लिख दिया। जो जो आपने कर लिया उस पर आप टिक लगा लो, बात खत्म हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपने बिल्डिंग और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो बिल्डिंग कितना है आपका 3,60,000, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया आपने 36,000, तो यही माइनस कर दिया। 3,60,000 में आप माइनस कर दो 36,000। बात समझ में आ रहा है। फर्नीचर कितना था 1,80,000, उस पर भी आपने 36,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, सो 3,60,000 में माइनस कर दो 36 कितना है 36,000। ठीक, स्टॉक एज इट इज रहने दो, मशीनरी पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया नहीं। डेटर पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डेटर कितना है 1,72,400, सो डेटर विल बी 1,72,400, उसमें माइनस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स and the provision is 8,620, उसको माइनस कर दो, कर दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट था 4 लाख, उस पे आपका एक्रूड इंटरेस्ट था। इन्वेस्टमेंट कितने का था 4 लाख का और उस पे आपका
इंटरेस्ट था एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं प्लस किसमें इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते हैं, दैट इज एन 2000 20,000 एंड नेक्स्ट विल बी देन एडवांस रेंट। एडवांस रेंट आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। एडवांस रेंट इज योर एसेट्स 11,600। तो आपने देखिए एक्रूड इंटरेस्ट को भी ऐड कर दिया, एडवांस रेंट को एसेट्स में लिख दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को आपने डेटा में से माइनस कर दिया, बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर में जो डेप्रिसिएशन का उसको माइनस कर दिया। बाकी देखा आप देख रहे हैं सब पे मैंने टिक लगा दिया। ऑल द एडजस्टमेंट आर डन इन द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ ईयर। सारा एडजस्टमेंट आपने फाइनल स्टेटमेंट ऑफ ईयर में कर दिया प्रॉपरली, अच्छे ढंग से कर दिया। अब क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बैलेंस, कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला दिया है 33,600, 4,400 और इधर क्या है 38,400। उसमें ऐड करिए प्रॉफिट 1,81,180 एंड 80,000 इन्वेस्टमेंट का ऐड कर दीजिए। 80,000 नहीं, 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का ऐड कर दीजिए, सो 9 लाख हो गया। तो ये आपका ऐड करके आ रहा है 8,5,9,1 2,31,000 23,90,580 और उसमें से 1,20,000 माइनस कर दो क्लोजिंग कैपिटल। अरे ड्रॉइंग का 2,19,000 21,99,580 21,99,580 ठीक, ये हो गया। ये हो गई लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड में 21,99,580 में 33,600 और 4,400 ऐड कर दो 0,851 22,37,580 द टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड। अब हम लोग बात करते हैं एसेट साइड में। सारा कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में ये पता रहे कि भैया जो चीजें हैं आपको विद इन अ टाइम कैलकुलेट करनी पड़ेंगी हर चीजें। फर्नीचर 3,60,000 36,000, सो ये आ गया आपका 4 5 में 3 गया 2 3,24,000 जो फर्नीचर वैल्यू एंड बिल्डिंग, ये तो सिंपल सा है 3,60,000 में एंड ये आपकी फर्नीचर की वैल्यू 180 थी, 180 में से 36 था, तो ये वैल्यू 3,22,000 आपका बिल्डिंग की वैल्यू, और 180 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 0 0 4 7 में से क्या 4 1 144 1,44,000। अब हम लोग बात करते हैं डेटर पे, प्रोविजन कितना आएगा 1,72,400 में आपको 8620 डिडक्ट करना है, तो 0,837,1,3 1,63,780 ये हो गया आपका डेटर। सो आपने सारी इंफॉर्मेशन एसेट साइड में भी कैलकुलेट कर। अब क्या करेंगे हम लोग, सर सारी चीजों को हम लोग ऐड कर देंगे इन प्रॉपर वे। कैसे ऐड करेंगे, एज यू कैन सी दैट 3,70,000 ठीक, 3,70,000 463 3,41,200 144 इतना ऐड करना बहुत पॉसिबल है 002 एंड 3,448 1 12,28,200 12,28,200। अब उसमें क्या करो, बाकी चीजें 144 के बाद जितनी चीजें गिवन है 324 ऐसे ही आपको सारी चीजें ऐड करनी होगी। 324 163 780 420 11,600 ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी एडेड, तो आपका आंसर आएगा टोटल इज 22,37,580।
अगर आपका कैलकुलेशन करेक्ट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इतना इजी है और उस पे क्वेश्चन आते हैं 6 to 8 मार्क्स के, तो वो आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वी फॉलो द प्रॉपर स्टेप्स कौन कौन से हम लोगों ने फॉलो किए। पहले हम लोगों ने बनाया ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, and with the help of the opening statement of affair we calculate the opening capital, and thereafter we prepare the closing statement of affair and calculate the closing capital। उसके बाद हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया, दैट इज एन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रिपेयर किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से, और उसे कैलकुलेट किया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट और प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वी प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा प्रोसेस है। Okay, and I hope today we cleared all the concept and questions related to this chapter very easily। आज के लिए इतना ही। Thank you, thanks a lot and take care।